Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel. Today we'll be doing the second poem of the book Beehive, class 9 CBSE, and that is Wind, written by Subramanya Bharti. It's a beautiful poem which talks about difficulties and challenges one faces in his or her life. Well, before we go in deep, let's discuss about the poet. Subramaniam Bharati, born on 11 December 1882, was a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist, and social reformer. He is considered as one of the literary figures of all time. His numerous works included fiery songs kindling patriotism during the Indian independence movement. So, my dear children, the poet Subramaniam Bharati, he was a Tamil writer, and not only a writer, he was a poet, a journalist. He was a social reformer. He was an activist also, and he was born on 11 December 1882, and he is considered as one of the great poets of all the time. And his numerous works, most of his writings or songs used to kindle patriotism, especially when this independence movement was going on. अगर हम इस पोएट की बात करें तो इनके जो ज़्यादातर कविताएं थी, जो पोएम्स थे, वो देशभक्ति की भावना को अंदर से जगाने का काम करती थी. अगर आप इनके पोएम्स को पढ़ें तो एक देशभक्ति की भावना आपके अंदर जो है जाग उठेगी. और ये ऐसे समय की बात है जब भारत, हमारा देश जो है आज़ादी के लिए लड़ रहा था. So this is just a brief description about the poet. Now we'll discuss this poem in detail. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friends with it? Now, my dear children, this poem is about wind. Wind is a natural phenomena. But in this poem, the poet has symbolized this wind to the difficulties and challenges one faces in his or her life. And he says that wind is very, very destructive if the objects are weak. पोएट ये कहते हैं कि ये जो विंड है, जो हवा है, ये बहुत खतरनाक और घातक हो सकती है अगर इसके सामने आए हुए चीज़ें कमज़ोर हों. तो अगर कोई घर कमज़ोर है तो उस घर को ये जो विंड है उसे बर्बाद कर देगी. कुछ भी उसके सामने आए उसे वो बर्बाद कर देगी. लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई मजबूत चीज़ इस विंड के सामने आए, इस हवा के सामने आए, तो विंड उस मजबूत चीज़ का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती. और यहाँ पर विंड पोएट के अनुसार जीवन में आने वाली समस्याएं, परेशानियां, दिक्कतें और जो भी मुसीबतें इंसान अपने जीवन में महसूस करता है, झेलता है, उसके संबंध में है ये. Now we'll discuss this poem in detail. Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. Now the poet is saying to the wind, he's talking to the wind and he's saying that wind, come slowly. You have the habit of attacking all of a sudden. You have the habit of dominating
others all of a sudden, because problems, difficulties, they don't come with prior notice or with prior information. जीवन में जो समस्याएं आती हैं, दुख जो आते हैं, वो बता के नहीं आते. वैसे विंड भी जो है वो बता के नहीं आती, हवा. इसीलिए वो कह रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. और तुम जो इतनी तेज़ी के साथ जो हवा तुम जो आ रहे हो, इससे हो क्या रहा है, जो खिड़कियों की शटर्स हैं जो बंद करते हैं हम, वो ब्रेक हो जा रहे हैं. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर्स रखे हुए हैं टेबल पर, कमरे के अंदर, वो सब इधर उधर बिखर जा रहे हैं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, यहाँ तक कि जो शेल्फ पर जो किताबें रखी हुई हैं वो भी नीचे गिर जा रही हैं. देयर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, you brought rain again. Now the poet is saying that see what type of destruction you have created. वो विंड से कह रहे हैं कि देखो कैसा नुकसान तुमने किया है, हर सब कुछ बिखर गया है. You tore the pages of the book, जो किताब है उनके पन्ने फट चुके हैं. और यहाँ तक कि तुमने रेन, बारिश को भी अपने साथ ले आए. बारिश, ये जो रेन है यहाँ पर, इट इज टॉकिंग अबाउट सॉरो. when we cry, tears roll down from our eyes. जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं. वैसे ही जब लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं कि हम रोते हैं, दुखी हो जाते हैं, जीवन हमारा बिखर जाता है, लाइफ हमारी स्कैटर हो जाती है, हम टूट सा जाते हैं. ठीक वैसे ही ये हवा भी यहाँ पे क्या कर रही है, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी. You are very clever at poking fun at weaklings. Now the poet is saying to the wind that you are very clever at poking fun. Poking fun means what? Making fun at weaklings. Weaklings mean weak people or weak things or weak objects. यहाँ पर पोएट कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, जो कमज़ोर होते हैं उनका तुम मजाक उड़ाते हो. पोकिंग फन मीन्स तुम उसका मजाक उड़ाते हो. यू मॉक एट देम, यू मेक फन ऑफ देम. किसका? वीकलिंग्स. वीकलिंग्स मीन्स थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स दैट आर वीक, जो कमज़ोर हैं. फ्रेल also means weak. If any weak thing comes in front of this wind, it will be destroyed completely. कभी भी आपने देखा होगा जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं ख़ास तौर पर हवा के सामने टिक नहीं पाती. और आपने ये भी देखा होगा कि जो कमज़ोर चीज़ होती है उस पर हवा इस प्रकार हावी हो जाता है या इस प्रकार उस चीज़ पर नुकसान पहुंचाता है कि कई बार आपने देखा होगा चीज़ों को हवा में उड़ते हुए. कमज़ोर चीज़ों को जब तेज़ हवा चलती है तो आपने देखा होगा कि जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं वो हवा में उड़ने लगती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं. यहाँ पर पोएट का कहने का मतलब ये है कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो. एक प्रकार से तुम जो हो अपनी ताकत का जो हो परिचय दे रहे हो उन पर. Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Now he is talking about the weak. Crumbling means weak, कमज़ोर. Okay? जो चीज़ें होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं. Okay? Frail crumbling house means जो कमज़ोर घर होते हैं वो टूट जाते हैं. जो कमज़ोर दरवाजे होते हैं वो टूट जाते हैं. जो कमज़ोर रैफ्टर्स होते हैं. व्हाट डू मीन बाय रैफ्टर्स? रैफ्टर्स मीन्स द लॉग ऑफ वुड इन रूफ. छत पर जो आपने देखा होगा लकड़ियों की जो बीम लगे रहते हैं, ठीक है, जो छत को सपोर्ट देते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड रैफ्टर्स.
ठीक है, आपने देखा होगा अब शहर में तो अमूमन ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, लेकिन पहले ज़माने में जो घर हुआ करते थे उसमें लकड़ियों के वुड के लॉग्स लगाए जाते थे छत को सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, दे आर कॉल्ड रैफ्टर्स। क्रम्बलिंग वुड, ठीक है, और जो कमज़ोर लकड़ियाँ हैं वो टूट जाती हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, बॉडीज़ हेयर मीन्स इंसान, ठीक है, कमज़ोर इंसान भी टूट जाता है इस हवा के सामने। क्रम्बलिंग लाइव्स, जिंदगियां टूट जाती हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स, कितने लोगों के दिल टूट जाते हैं। ओके, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। नाउ द पोएट इज सेइंग दैट दिस विंड गॉड, व्हाई विंड गॉड? बिकॉज इट हैज़ द पावर टू क्रिएट लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाता है यह हवा, इसलिए विंड गॉड बोल रहे हैं क्योंकि उसके पास इतनी पावर है, ठीक है। विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ये जितनी भी कमज़ोर चीज़ें हैं, चाहे क्रम्बलिंग हाउसेस की बात हो, क्रम्बलिंग डोर्स, रैफ्टर सब की बात हो, ये जो कमज़ोर है, फ्रेल है, ये सारी चीज़ें, ये सब को हवा क्या कर देती है? विनोज। विनोज का मीन्स उड़ा देना, यू नो। विनोज इज़ ए प्रोसेस, आप देख सकते हैं, यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, यू नो, दिस फार्मर he is literally trying, you know, to separate the husk from grain, okay, by doing so। ऐसे करने से होता है क्या, जो भूसी होती है ना, वो जो गेहूं से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। गेहूं एक तरफ हो जाता है, भूसी एक तरफ हो जाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब वैसे ही है कि जब हवा चलती है तो जो कमज़ोर लोग होते हैं वो सब उड़कर जो है दूर चले जाते हैं, ठीक है। हवा क्या करती है, ऐसे लोगों को उड़ा देती है। विनोज मीन्स उड़ा देना, ठीक है। एंड क्रशेस देम ऑल, उनको दबा भी देती है, ठीक है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। नाउ ऐसा नहीं है कि आप अगर कहोगे समस्याओं को, दिक्कतों को, डिफ़िकल्टीज़ को कि प्लीज़ अभी मत मेरे जीवन में आना, तो क्या वो आपकी बात सुनेगी? नहीं, ठीक है। वैसे अगर आप हवा से कहोगे कि देखो अभी मत आओ, तो क्या हवा आपकी बात सुनेगी? ऐसा नहीं है। सो इन दैट सेम वे विंड इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू यू, सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। नाउ द पोएट इज सेइंग कि विंड तो हमारी बात सुनने वाली नहीं है, उसी तरीके से जीवन में समस्याएं, चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़ बता के तो आएंगी नहीं। इसीलिए बेहतर क्या है, वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। हमें मजबूत घर बनाने की ज़रूरत है। अगर हमारा घर मजबूत होगा तो चाहे जितनी तेज हवा चले तो भी हमारे घर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेट अस जॉइंट द डोर्स फर्मली, मीन्स बी यूनाइटेड, हमें मिलकर रहना है। एकता की बात कर रहे हैं वो यहाँ पर, ओके, इज टॉकिंग अबाउट यूनिटी। अगर हम मजबूती के साथ दरवाजे बंद करके रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हवा अंदर प्रवेश नहीं करेगी। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, वी नीड टू मेक आवर बॉडी वेरी स्ट्रॉन्ग, हम अपने बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बना के रखना है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग इनफ, मजबूत, अटल। दिल को भी हमें मजबूत बनाना है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जो कि इस पोएम में विंड से कंपेयर किया गया है, लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ जब आती हैं तो ज़रूरी है कि दिल को मजबूत करें, ज़रूरी है कि अपने शरीर को मजबूत रखें, ज़रूरी है कि अपने घरों को मजबूत रखें, अपने दिमाग को मजबूत रखें, माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। एंड इफ यू डू दिस, व्हाट विल हैपन? द विंड विल नॉट create any sort of destruction to us, but rather it will become friends, rather it will become friend of us, बल्कि वो हमसे क्या हो जाएगी, उसकी दोस्ती हो जाएगी, ठीक है, फ्रेंडशिप हो जाएगी। The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। Now the wind blows out weak fires, जो कमज़ोर आग होती है, कमज़ोर आग को क्या होता है, कमज़ोर आग, तेज़ हवा चलती है तो कमज़ोर आग बुझ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोमबत्ती जल रही है, ज़ोरदार हवा चली तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। बट एट द सेम टाइम ही इज सेइंग ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश,
लेकिन अगर आग बहुत मजबूत आग है, कमज़ोर आग नहीं है, मोमबत्ती की आग की तरह कमज़ोर नहीं है, मान लीजिए जंगल में आग लगी है, तो आप भी जानते हैं कि जब जंगल में आग लगती है और हवा चलता है तो आग बुझती नहीं है बल्कि आग और फैल जाती है. इन दैट सेम वे द पोएट इज सेइंग दैट इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, what will happen? You will come out as a victorious person. अगर आप मजबूत हो अंदर से तो उन समस्याओं और मुसीबतों में आप अगर हिम्मत नहीं हारते हो, आप विजय बनकर बाहर निकलोगे. और अगर आप कमज़ोर हो जाओगे तो वो आग आपको उड़ा ले जाएगी. His friendship is good. His friendship is good. It teaches us so many new things. We praise him every day. हम हर दिन प्रेज करते हैं हवा को. इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ. जीवन का एक अहम हिस्सा है दिस विंड, बिकॉज एवरी वन हैज टू फेस डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस. एंड वाई पोएट इज सेइंग दैट हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वाई पोएट इज सेइंग दैट वी प्रेज हिम एवरी डे, बिकॉज दीज डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस दे टीच अस मैनी थिंग्स. ये हमें मजबूत करती है, ये हमें स्ट्रांग बनाती है अंदर से, ये हमें जीवन को जीने का सही मायना सिखाती है. लाइफ कैसे अपने आप को कैसे लाइफ में स्ट्रांग बनाकर रखना है, ये सारी चीज़ें हमें किससे सीखने को मिलती है? इस विंड से. विंड मीन्स व्हाट? डिफिकल्टीज एंड चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स दैट वी फेस इन आवर डे टू डे लाइफ. सो by this we come to the end of this poem. I hope you have understood this poem very well. Now we will discuss the poetic devices that have been used in this poem. Anaphora, first of all. Anaphora आप जानते हैं क्या होता है. This is a kind of poetic device where one particular word or group of words, they are used in the beginning of a sentence more than once or twice. जब एक ही word किसी लाइन की शुरुआत में एक से कई बार ज़्यादा यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो. इस लाइन का पहला वर्ड डोंट है, इसके बाद वाले लाइन का भी पहला वर्ड डोंट है, एंड आफ्टर दैट जो नेक्स्ट वर्ड है उसका भी पहला वर्ड क्या है? डोंट है. जब बैक टू बैक जब एक ही वर्ड कई लाइन्स की स्टार्टिंग में यूज़ होता है, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा. Then another example of anaphora is given. You tore the pages of the book. You brought rain again. You are very clever at poking at weaklings. Again, what is happening? This you word. We can see this word being used in the beginning of the line. So this is also an example of anaphora. Then we come to the next poetic device, that is alliteration. You threw them all down. This T sound, consonant sound, is being repeated here. This is an example of alliteration. Then the wind god winnows. Wind god, W, this W word, this consonant word is again prevalent. It is again used. That is another example of alliteration. Then comes to another poetic device, that is personification. What do you mean by personification? When human attributes are given to a non-human or a non-living thing, that is called personification. In this poem, the poet is using this pronoun he for wind. Again and again he is addressing this wind as he, as if he is talking to somebody. यहाँ पर विंड को उन्होंने बार बार एक इंसान के तौर पर दिखाया है, ही करके यूज़ किया है. ही जो कि एक प्रोनाउन है, हम यूज़ करते हैं अमूमन लिविंग थिंग्स के लिए, बट यहाँ पर उन्होंने विंड के लिए यूज़ किया है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. अनदर पोएटिक डिवाइस इज सिम्बॉलिज्म. व्हाट डू मीन बाय सिम्बॉलिज्म? व्हेन one particular cheese symbolizes another. For example, in this poem, this wind symbolizes challenges in life. ये विंड किस चीज़ का प्रतीक है? जीवन में आने वाली समस्याएं, दिक्कतें और मुसीबतों का प्रतीक है. So this is the example of symbolism. Then coming to another poetic device, that is repetition.
You can find so many other examples also, but I have taken this example because it is very clear. We can see it very easily. Crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. One single word is being repeated several times in this poem, and that is crumbling. And this is the example of repetition. So, my dear children, I hope you have understood this poem very well. Still, if you have any confusion, you can ask me in the comment section. So, that was all from this video. Thank you, take care, and God bless you.